So, hi all, I welcome you to this caselet now. This is a caselet on games and tournaments in which we will see how points can be distributed and how you can get accustomed with the minimization and maximization principle in case of games and tournaments. So, let's read through the caselet first. Kessler says that a hockey tournament was held between 14 countries. These countries were divided into two pools, Pool A and Pool B of 7 countries each. In each pool, a country plays one match with every other country. At the end of pool stage, top three teams move on to the next round based on the points scored in the pool stage. 2 points are awarded for a win and 1 point for a draw and 0 points for a loss. ठीक है तो let's just pause here. Let's try to recap what we have read. तो 14 teams हैं in total और 14 countries हैं. They are divided into two pools, Pool A and Pool B. पूल ए में हमारे पास 7 टीम्स या 7 कंट्रीज होंगी। सिमिलरली पूल बी में भी हमारे पास 7 टीम्स या फिर 7 कंट्रीज होंगी। लेट्स से हमारे पास 7 टीम्स होती हैं T1 T2 T3 से लेकर के T7 तक। ठीक है तो कह रहा है एट द एंड ऑफ पूल स्टेज टॉप 3 टीम्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। सो एट द एंड ऑफ दिस पूल स्टेज फ्रॉम पूल ए top 3 teams they will move on to the next round, the second round. Same thing will happen in पूल बी ऑल्सो। तो पूल बी में भी आपके पास लेट्स से 7 टीम्स है। तो टॉप 3 टीम्स फ्रॉम हियर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। सो दिस इज राउंड 1 एंड देन यू विल हैव राउंड 2। और पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? +2 फॉर अ विन, 1 फॉर अ ड्रॉ एंड 0 फॉर अ लॉस। ठीक है तो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी मैच का आउटकम कैसा हो सकता है? आउटकम हो सकता है दो टीम्स के बीच में मैच है, लेट्स से T1 और T2 के बीच में। तो आउटकम हो सकता है विन लॉस का या फिर ड्रॉ का, राइट? या फिर ड्रॉ का। विन लॉस के केस में क्या होगा? +2 और 0, और ड्रॉ ड्रॉ के केस में होगा +1 और +1, राइट? तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैच कितने होंगे? 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी भी एक मैच में। ठीक है तो ये पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपका विन ड्रॉ या लॉस में है, उससे आपको निकालना चाहिए कि मैच के आउटकम पे, मैच के डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स पर हमारा कितना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Points distribution remained the same in the second round as well. ठीक है In the second round, every team from Pool A plays a match with every team from Pool B. So let's say in round 2, now in round 2 what is happening is हमारे पास T1 T2 T3 आ रहे हैं पूल A से, और X1 X2 X3 आ रहे हैं पूल B से. So a team from Pool A plays with every other team in Pool B, right? So T1 will play a match each with the teams X1 X2 X3. Similarly, T2 will play a match with X1 X2 and X3 each. Likewise for T3. Okay. Now at the end of this second stage, what is happening is the top two teams from each pool move on to the semifinals. तो at the end of round 2 क्या हो रहा है कि top two teams from each of the pools, right? They will move on to the semifinals. So you'll have 4 teams in semifinals playing 2 matches. ठीक है and the winners of the semifinals play the final. Then you have the final match being played. ठीक है If two or more teams end up with the same number of points at the end of round 1 or at the end of round 2, then the team with better goal difference is ranked higher. In case tie is still unresolved, the team with more number of goals or the number of goals scored higher, with more number of goals is scored higher, is ranked higher. ठीक है Resulting in no tie at any stage. तो किसी भी जैसे right from this point to like this point, क्या कह रहा है? Resulting in no tie at any stage. ठीक है तो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाई कर दिया कि किसी भी स्टेज पर यदि दो टीम्स का पॉइंट सेम होता है, सपोज करो यहाँ पर टीम 2 और टीम 3 दोनों को लेट्स से 8 8 पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्या होगा? रैंकिंग में ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू रैंक T2 हायर देन दैट ऑफ T3. ठीक है the tie will be resolved, the tie will be broken based on these rules given in the question, and there will not be any tie at any point at any stage of the
इंटायर सीरीज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आपका पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना होता है, क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड के लिए यदि आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास 7 टीम्स है, ठीक है। इफ आई पिक 2 टीम्स आउट ऑफ दोज 7, देन दो टीम में एक मैच होगा, तो 7C2 मैचेस इन टोटल होंगे, ठीक है। आई एम सेलेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट आई एम selecting two objects from 7 distinct objects. Number of ways of selecting two objects from 7 distinct objects is 7C2, and that will result in 7C2 matches for this pool, and then 7C2 matches for this pool also. So I'll say 7C2 into 2 plus, here team 1 plays 3 matches. Likewise, team 2 and team 3, we have two more teams. So these three teams will play 3 matches here. Okay? And then semi-finals will result in 2 matches and finals will result in 1 match, right? So total number of matches, if you see here, would come out to be, okay? So this should be 42 plus 9 plus 2 plus 1, which should be equal to 54. So the answer for the first question should be 54. Okay? So let's move on to the second question now. What is the least number of points with which a team can advance to the second stage? देखो, least number of points पूछ रहा है आपसे, ठीक है। least number of points with which a team can advance to the second stage, ठीक है। तो assume करो यहाँ पर हम pool stage की बात कर रहे हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7, ठीक है। तो टीम को एडवांस करना है सेकंड स्टेज में, ठीक है। और उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ यदि सपोज करो हमने रैंक किया है टीम्स को इन द ऑर्डर ऑफ लाइक इन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड एंड आफ्टर ब्रेकिंग द टाइज, देन आई एम अज्यूमिंग दैट दीज टॉप 3 टीम्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज, एंड देन द क्वेश्चन टेल्स मी, or the question is asking, what is the minimum number of points that T3 can score and still qualify to the second round or the second stage, ठीक है। So the question is asking what is the minimum number of points that T3 can score with which it can still qualify or move on to the next round, ठीक है। तो यदि हमें टीम 3 के पॉइंट्स को मिनिमाइज करना है, तो हम बचे हुए सारे के पॉइंट्स, जितने भी बचे हुए टीम्स हैं उन सबके पॉइंट्स को हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो हम कहेंगे भाई T1 T2 को भी मैक्सिमाइज करो और T4 T5 T6 T7 के भी पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करो। हालांकि चूंकि यहाँ पर आपने जो रैंक जो आपने लिखा है T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, it has been ranked in the in the order of in the order of the points and after breaking the ties. So T3 का जो कंपैरिजन करोगे आप T4 के साथ, ठीक है। T3 का और T4 का जो आप कंपैरिजन करोगे उसमें आप क्या कहोगे कि T4 का पॉइंट्स आपको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज फाइन, बट T4 का पॉइंट्स कभी भी T3 से ज्यादा नहीं होगा। T4 का पॉइंट कभी भी T3 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि T4 का पॉइंट यदि T3 से ज्यादा हो गया तो T4 ऊपर रैंक होगा, राइट। तो हम कहेंगे लिमिटिंग केस में ये पॉसिबल है कि T3 और T4 दोनों का पॉइंट सेम हो जाए और ऑन द बेसिस ऑफ टाई ब्रेकिंग T3 ऊपर रैंक हो जाए, राइट। T3 और T4 दोनों का पॉइंट सेम हो जाए और ऑन द बेसिस ऑफ टाई ब्रेकिंग T3 ऊपर रैंक हो जाए, राइट। सो दैट वुड बी द लिमिटिंग केस विच वी वुड कंसिडर, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड। यदि हमें मिनिमाइज करना है तो जैसे T3 को हमें मिनिमाइज करना है, तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना होगा कि किसको किसको हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट। और दूसरा पॉइंट हो गया लिमिटिंग केस में, जिसमें हम कहते हैं कि T3 और T4 दोनों का पॉइंट्स हमें इक्वेट करना है। सिमिलरली T4 T5 या T5 T6 या T6 T7, इन सबको इक्वल पॉइंट्स आप दे सकते हो, इन सबको इक्वल पॉइंट्स दे सकते हो, जो कि इन सबको मैक्सिमाइज करना है। तो लिमिटिंग केस हमारा इक्वल टू पर बनेगा। और उसके बाद उसके बाद फिर आप देखो कि T1 और T2 के केस में क्या होगा, ठीक है। T1 के केस में क्या होगा, T1 विल प्ले 6 मैचेस और उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम कहेंगे भाई 6 मैचेस में यदि वो 6 विंस लेकर के यदि वो 12 पॉइंट्स लेता है तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेल पॉसिबल। सिमिलरली T2 विल प्ले 6 मैचेस बट इट शुड रजिस्टर 5 विंस। व्हाई should it maximum maximum number of wins it could register is 5? Because T2 का T1 के साथ मैच हुआ था और T1 6 विंस के साथ आगे बढ़ा है। तो T2 T1 के मैच में T1 के साथ के मैच में हार गया होगा। तो हम कहेंगे 5 into 2 यानी 10 पॉइंट्स T2 को मिल सकता है, ठीक है।
और इसमें ऑन टॉप ऑफ दिस एक चीज और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास यहाँ टोटली 7C2 मैचेस हुए, हर एक मैच में 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी टोटली 42 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। टोटली 42 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यहाँ देखो तो T1 और T2 को कंबाइन करके हमारे पास 22 पॉइंट्स निकल गए। तो आउट ऑफ 42 पॉइंट्स विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 22 पॉइंट्स हैव बीन टेकन ओवर बाय T1 and T2, which means 20 points now remain, right? Which should be distributed between T3, T4, T5, T6, and T7, right? So 20 points should be distributed between among these five teams. So, and each team can get like the same number of points, and the tie would then be decided based on the rules given in the question. So I'll say the number of points that each team can like receive is 20 by 5, which is equal to 4 points. So like if each team receives like 4 points, 4 points, 4 points, 4 points, and 4 points, then the basis of tie breaking rules, you say that T3 is ranked above T1, T4, right? So what is the least number of points with which a team can advance to the second stage? The least number of points should be 4. So with 4 points, a team can advance to the next stage. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वो मिनिमम का क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम का क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय अ टीम दैट इज एलिमिनेटेड एट द पूल स्टेज। तो दोबारा से मैं लिख रहा हूँ T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। ठीक है, और हमने कहा कि भाई ये टॉप 3 टीम्स हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं, टीम 4 जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन आपका इस तरह से ही फ्रेम होगा कि टीम 4 एलिमिनेट हो रहा है, वो कितना मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करके भी एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, वो कितना मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करके भी एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, एज अपोज टू द अदर क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट देखा, जिसमें हमने कहा T1, T2, T3, T4, T5 और T6 और T7। हमने कहा टीम 1 से 3 क्वालिफाई कर रहे हैं, T3 का मिनिमम पॉइंट बताओ विच इट कुड स्कोर एंड स्टिल क्वालिफाई। यहाँ पर क्या है, T4 का मैक्सिमम पॉइंट बताओ विच इट कुड स्कोर एंड स्टिल गेट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, तो T4 को यदि हमें मैक्सिमाइज करना है तो ऊपर के जितने भी टीम्स के स्कोर्स हैं उसको हम मिनिमाइज करेंगे, और नीचे के भी जितने भी टीम्स के स्कोर हैं उनको भी हम मिनिमाइज करेंगे, राइट, उनको भी हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अब क्या है, T5, T6 और T7, T5, T6 और T7 के जो हमारे स्कोर्स होंगे उनको हमें मिनिमाइज करना है। तो हालांकि यदि सोचो आप तो T5, T6, T7 टोटली हमारे पास 3 टीम्स हैं जो कि 3C2 मैचेस खेलेंगे, राइट। और उनके जो 3C2 मैचेस हैं जिसमें कि हमारे पास 2 पॉइंट हर एक मैच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। तो ये जो हमारे पास 6 पॉइंट्स आएगा बिटवीन इन द मैचेस दैट दीज टीम्स आर प्लेइंग अमंग देमसेल्व्स, right, these 6 points would still like remain with these 3 teams T5, T6 and T7, right। और हमें पता है कि टोटली पॉइंट्स कितने हैं, 7C2 into 2 यानी 42 पॉइंट्स इन टोटल आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट। सो ठीक है, दी सो विल कीप दिस इन माइंड, दिस इज वन। और हमने देखा कि मैक्सिमाइज करना है, हमें इन सबको मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब क्या है कि यदि हमें T4 को मैक्सिमाइज करना है और आप सोचो T3 और T4 को कंपेयर करो, तो क्या T4 का पॉइंट, भले ही मैक्सिमाइज करना है लेकिन क्या T4 का पॉइंट, क्या वो कभी T3 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, T3 से ज्यादा पॉइंट तो नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर T4 को आप ऊपर रैंक करते। तो लिमिटिंग केस हम लेंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है, T3 और T4 दोनों का पॉइंट सेम हो सकता है, राइट। क्योंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है T4 को और T3 को मिनिमाइज करना है, तो हम कहेंगे भाई दोनों का पॉइंट इक्वल हो सकता है। सिमिलरली T3 और T2 का भी पॉइंट इक्वल हो सकता है क्योंकि इन सबको मिनिमाइज करना है, या फिर T2 और T1 का भी पॉइंट इक्वल हो सकता है क्योंकि इन सबको हमें मिनिमाइज करना है। तो हम कहेंगे ये चारों के पॉइंट्स सेम हो सकते हैं, राइट, सेम हो सकते हैं। ठीक है, और इन चारों के पॉइंट में हमें T4 को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हमने कहा भाई टोटली हमारे पास 42 पॉइंट्स हैं, और 42 पॉइंट्स में से ये जो 6 पॉइंट हैं ये तो नीचे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी बचे हमारे पास इन टोटल 36 पॉइंट्स। और ये 36 पॉइंट्स जो होंगे, these can be distributed among these top 4 teams, right, such that each team gets like 9 points. So each team will get like 9 points here, right, each team gets like 9 points here, and on the basis of tie breaking, T1 is ranked above T2, is ranked above T3, and T3 is ranked above T4। ठीक है, and T4 even after scoring like 9 points still gets eliminated। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है,
पहला हो गया हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो हमें किसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। और जब मैक्सिमाइज करना है तो हमारा लिमिटिंग कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा, ठीक है। और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है कि जो बचे हुए टीम्स हैं उनके आपस का जो हमारे पास मैच हो रहा है और उनमें जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो उनके बीच में ही होंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो जितने भी पॉइंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो बचेंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे among the remaining like the top four or top n teams, ठीक है। So this is the way in which you should attempt a question like this, ठीक है। Keep these three clues in mind: मिनिमम कहाँ करना है, मैक्सिमम कहाँ करना है, और लिमिटिंग केस कैसे लोगे, और जो हमारे पास बचे हुए टीम्स हैं उनके बीच का स्कोर, उनके बीच का जो पॉइंट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। So let's move on to the next question now. Next question is, what is the minimum number of matches won by a team that reaches the finals? ठीक है। तो फाइनल्स में हमें पहुंचना है, हमने देखा पूल स्टेज है, उसके बाद फिर हमारा सेकंड स्टेज है, फिर सेमीफाइनल्स है और फिर फाइनल्स है, ठीक है। तो पूल स्टेज में जो हमारे 7 टीम्स हैं, ठीक है, जो हमारे 7 टीम्स हैं, ऐसा पॉसिबल है कि टोटली हमारे पास यहाँ लाइक 42 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी एक पूल में, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि सारे टीम्स के सारे मैचेस ड्रॉ हो जाएं और हर एक मैच ड्रॉ हो जाए, राइट, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ like like tie breaking, on the basis of like whatever tie breaking, those teams the tie gets resolved, ठीक है। I'm not worried about like the tie getting resolved because it's been mentioned that resulting there is no tie at any stage. So what will happen is like here from here T1 T2 and T3 they'll move on to the next round, ठीक है। Then here they have like the teams have registered like 0 wins, okay. Then in the second round also what will happen is there could be like ties between these the matches that T1 T2 T3 will play with the teams from the other pool, which let's say is X1 X2 X3, and they all might result in tie, and then the tie would get resolved, right. So here also they could register like 0 wins, the top two teams, and move on to the semifinals. And in the semifinal to reach to the final they should register like 1 win at least, right. So in the finals, to reach the finals, a team should have like 1 win at least in the semifinals. So the minimum number of wins for a team to reach the final would be one. Okay. Let's move on to the next question now. Now in the pool stage, if in pool A, no two teams scored the same number of points, okay, then the points scored by the team that reaches the Super 6 stage is at least, okay. So T1, T2, T3, T4, T5, T6 or T7, ठीक है। टॉप थ्री टीम्स क्वालिफाई, लेट्स से दीज आर द टॉप थ्री टीम्स दे क्वालिफाई, ठीक है। पूछ क्या रहा है, the points scored by a team that reaches the Super 6 stage or that reaches the next stage is at least how much, ठीक है। तो the points scored by like T3, ठीक है, is at least how much, is minimum like how much, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, it's the same question as like this one, right? uh, uh, Not this one, yeah, question number 2 here, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन आपसे सेम पूछ रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन एडवांस टू द सेकंड स्टेज, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन क्वालिफाई टू द नेक्स्ट स्टेज, राइट। हाउएवर यहाँ पर मेंशन क्या लिखा है, क्या रखा है आपसे, नो टू टीम्स स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। नो टू टीम्स स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, बनाने का अप्रोच इसको कैसे रखोगे, सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने देखा कि टोटल यहाँ पर पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 42 पॉइंट्स, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई इसको आप मैक्सिमाइज करो, ऊपर के टीम्स जितने भी हैं, उनके पॉइंट्स को आप मैक्सिमाइज करो, नीचे के जितने भी टीम्स हैं उनको आप मैक्सिमाइज करो, ठीक है। तो अब मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पर हमने कहा टीम वन जो है वो 6 मैचेस खेलेगा 6 विंस के साथ, 12 पॉइंट्स रजिस्टर करेगा। टीम टू जो होगा वो 6 मैचेस खेलेगा 5 विंस के साथ, 10 पॉइंट्स वो रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास 22 पॉइंट्स निकल गए आउट ऑफ 42। तो हमारे पास बचते कितने हैं, 20 पॉइंट्स हमारे पास बचते हैं, विच विल नाउ गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस रिमेनिंग 5 टीम्स हियर। और आपने कहा कि टीम थ्री और टीम फोर को यदि आप कंसिडर करते हो, यदि आप टीम थ्री और टीम फोर को कंसिडर करते हो, तो भले ही टीम थ्री के पॉइंट्स को मिनिमाइज करना है, लेकिन वो टीम फोर के पॉइंट से तो नीचे नहीं जाएगा ना। तो टीम फोर के पॉइंट के बराबर हालांकि लिमिटिंग केस में हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम लिमिटिंग केस लेकर के ही चलेंगे, फिर आगे हम बनाएंगे, ठीक है।
तो लिमिटिंग केस यदि हम लेके चलते हैं तो हमने कहा कि सबको इक्वल पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम टीम 3, और ये जो 20 पॉइंट्स हमारे पास बचते हैं दैट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज 5 टीम्स रिजल्टिंग इन 4 पॉइंट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच टीम। तो इसको हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं, लेट्स से दिस गेट्स 12 पॉइंट्स, दिस गेट्स 10 पॉइंट्स, दिस गेट्स 4 4 4 4 4। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नो टीम गेट्स द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब 4 4 4 4 4 सब में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? जो भी मीन वैल्यू है ऑफ लाइक द टीम्स विच आर हैविंग इक्वल स्कोर्स उसको उठाओ, और मीन के नीचे में -1 करो, मीन के ऊपर में +1 करो। सिमिलरली यहाँ पर -2 करो और यहाँ पर +2 करो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 5 4 3 and 2. So this way you are able to like distribute the same number of points, 20 points in here very very easily, right? This is the easiest way in which you can distribute like 20 points between these teams, right? Just start off with the mean. ठीक है, just start off with the mean and then try to like do the increment or try to decrease it accordingly based on the uh, based on the way in which the points are getting distributed here. ठीक है, so this would be an easy way to like do questions like this. Otherwise question like this can get like very very confusing, right? So that is all we had for like this caselet. uh, we will move on to another caselet जहां पर कि हमारे पास एक मैच में पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा it may not remain the same. There might also be a caselet wherein you will see that like right now I just took the mean value and then I try to like do a +1 +2 and -1 -2. So might end up with a case जहां पर आपको +1 -1 ना करना हो बट कुछ और करना हो, depending on the way in which the points are getting distributed. ठीक है, so stay tuned to our channel, look out for the new videos that are getting uploaded, and try to solve similar caselets there. Fine, okay, so thank you so much, bye.